کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی، پراسرار اور ناقابل یقین کہانی۔ یہ واقعہ بہت پہلے وقتوں کا ہے، جب گاؤں دیہات میں لوگ سواری کے لیے گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے، جب پاکستان کی آزادی کو محض چند ماہ ہی گزرے تھے۔ یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور یہ میرے شوہر کے نانا محترم کے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ اس کے خود چشمدید گواہ ہیں، اسی لیے یہ واقعہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ بڑا آزمائش کا دور تھا، ملک کی آزادی کو محض چند ماہ ہی گزرے تھے۔ پاکستان میں مقیم ہونے کی وجہ سے ہمیں الحمدللہ ہجرت کی مشکلات کا سامنا تو نہ کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود اس وقت یہاں کے حالات بھی سازگار نہیں تھے۔ اس لیے اس وقت چھوٹے بڑے سب زمیندار اور کسان وغیرہ بڑی محنت سے کام کرتے تھے کہ اتنے عرصے سے ویران پڑی زمین پر اناج اگایا جا سکے۔ اس سلسلے میں گاؤں دیہات میں ہر شخص اپنے طور پر محنت مشقت کر رہا تھا۔ اسی سلسلے میں اکثر دن یا رات کو فصلوں کو پانی لگانا بھی سر فہرست تھا۔ اس زمانے میں بجلی کی موٹر یا پیٹرا انجن کی سہولیات نہیں تھیں، اس لیے نہری پانی پر ہی فصلوں کا دار و مدار تھا اور گاؤں والوں میں سے اکثر ہی کسی نہ کسی کی رات کے وقت پانی لگانے کی باری ہوتی تھی۔ سب کچھ بہت اچھی طرح سے چل رہا تھا کہ اچانک گاؤں میں ایک ایسی افواہ گردش کرنے لگی کہ ہر کوئی خوفزدہ ہو کر رہ گیا۔ گاؤں میں کچھ لوگوں نے چڑیل کو دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ سب سے پہلے یہ دعویٰ اللہ دتے عرف دتے کمہار نے کیا۔ وہ رات کو فصلوں کو پانی لگانے کے دوران کریوں کے پاس آیا تو اس نے نیم اندھیرے میں اس چڑیل کو ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا دیکھا تھا۔ وہ وہیں سے الٹے پیروں واپس بھاگ پڑا اور قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے اپنے بستر میں دبک گیا۔ کریاں ہمارے گاؤں کا وہ علاقہ تھا جہاں بہت سے کری کے درخت تھے۔ کری ایک خاص قسم کا درخت ہے جو گاؤں میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس درخت کے بارے میں بہت سی باتیں گاؤں میں مشہور تھیں۔ مثلاً اس درخت کی لکڑی کوئی نہیں کاٹتا تھا، کیونکہ اس درخت کی لکڑی صرف اور صرف درباروں پر ہی جلائی جا سکتی ہے، کیونکہ اگر یہ لکڑی کسی گھر میں جلانے کے لیے استعمال کی جائے تو اس گھر میں کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ بھی اس درخت کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور تھیں۔ مثلاً اگر بارش برسنے کے دوران اس درخت کے نیچے کھڑے ہو جائیں تو اس کے نیچے کھڑے ہونے والے پر بارش کے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گرے گا، بشرطے کہ وہ سر اٹھا کر جب تک اوپر نہیں دیکھتا۔ جب وہ درخت کے نیچے کھڑا ہو کر آسمان کی طرف دیکھے گا تو ہی اس وقت بارش کا پانی اندر کی طرف گرنے لگے گا۔ خیر، ان باتوں میں کس قدر سچائی تھی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس جگہ پر بہت زیادہ کریوں کے درختوں کی بہتات تھی، اور یہیں گاؤں کے ایک شخص نے ایک چڑیل کو دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا۔ جہاں اس شخص نے چڑیل کو دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا، اس سے کچھ ہی فاصلے پر قبرستان کی حدود بھی شروع ہو جاتی تھیں، اس لیے ضعیف اعتقاد لوگ مزید ڈر گئے تھے۔ پھر کچھ دنوں بعد گاؤں کے ایک اور شخص نے اسی چڑیل کو دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ وہ گاؤں کا ایک معزز شخص عبداللہ تھا، جو جانوروں کا بیوپار کرتا تھا اور اکثر ہی شہر کی مویشی منڈی میں جانوروں کو فروخت کرنے جاتا رہتا تھا۔ اکثر ہی وہ اچھا سودا کرنے کی خاطر خوب اچھی طرح سے منڈی میں گھومتا پھرتا رہتا، اور پھر جب اسے مناسب دام ملتے جب ہی وہ جانور کا سودا کر کے گھر واپس آتا۔ اس رات بھی اس نے ایسا ہی کیا، اور شام ڈھلے جب اسے اپنے جانور کا مناسب گاہک ملا تب وہ سردیوں کی اس دھند آلود شام میں گھر جانے کو منڈی سے نکلا اور گاؤں جانے والی بس میں سوار ہو گیا۔ بس نے اس کو گاؤں کی پکی سڑک پر اتارا۔ یہاں سے اس نے تقریباً آدھے گھنٹے کا پیدل سفر کرنا تھا۔ اس وقت عشاء کی اذانیں بھی ہوئے کافی دیر گزر گئی تھی، لیکن چونکہ شدید سردیوں کے دن تھے اس لیے اس وقت آدھی رات کا گمان ہوتا تھا۔ عبداللہ نے اپنے گھر جانے کے لیے کچے راستے پر چلتے ہوئے اپنی رفتار بڑھا دی تھی، کیونکہ اسے کریوں کی طرف سے ہو کر گزرنا تھا اور وہ اس راستے کے حوالے سے ہونے والی باتوں کی وجہ سے خوف کا شکار تھا۔ لیکن اس کی حقیقی معنوں میں سٹی گم ہو گئی کہ جب اس نے ایک درخت کے نیچے اسی چڑیل کو بیٹھے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ اس انداز سے بیٹھی ہوئی تھی کہ عبداللہ کی طرف اس کی کمر تھی اور وہ ہولے ہولے ہل رہی تھی، جیسے چھوٹے بچے کوئی سبق یاد کرتے ہوئے ہلتے ہیں۔
उसने इस मौके को गनीमत जानकर दबे पांव अपने घर की जानिब दौड़ लगा दी। सुबह के सूरज तुलू होने के साथ ही गांव में हर तरफ इस वाक़ये की गूंज फैल गई थी। गांव में यूं तो जवान बल्कि बूढ़े और बच्चे भी खासे दलेर और बहादुर होते हैं, लेकिन जब बात हो माफूकुल फितरत अनासिर की यानी चुड़ैलों या जिन्नात की मौजूदगी की, वहाँ तो फिर हर कोई डर जाता है। लेकिन मैंने दिल ही दिल में ठान लिया था कि मैं एक दिन छुप कर इस चुड़ैल को ज़रूर देखूंगा, और इस मकसद के लिए दिल ही दिल में मंसूबे बनाने लगा। फिर एक दिन मुझे ये मौका मिल भी गया। हुआ ये कि हमारी एक ज़र्ई अराज़ी का कोई मसला था, जिसकी वजह से मैं अपने इलाके के पटवारी को लेकर शहर गया हुआ था। थोड़ी सी तगोदो के बाद वो मसला हल तो हो गया, लेकिन इस मसले में हमें रात बहुत हो गई थी। पटवारी के एक नज़दीकी रिश्तेदार का घर शहर में था और उन दोनों की मुलाकात को खासा अरसा हो चुका था। पटवारी बज़िद हो गया था कि चूँकि रात ज़्यादा हो गई है, इसलिए उसके रिश्तेदार के घर चलते हैं, मुलाकात भी हो जाएगी और रात भी वहीं गुजार कर सुबह वाली बस से अपने गांव वापस आ जाएंगे। मैं उसके खालाजाद भाई हबीबुल्लाह का अच्छा खासा वाकिफ़कार था। वो हमारे ही गांव का रिहाशी था, पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया था, शादी करके बीवी बच्चों को भी शहर ले गया था। मिजाज इस कदर सच्चा और अच्छा था कि जब अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर गांव आता, सबसे वैसे ही मिलता मिलाता जैसे ये ठाट बाट हासिल होने से पहले था। सो मेरी ख्वाहिश भी थी कि हबीबुल्लाह से मिलता जाऊं, लेकिन रात ज़्यादा हो गई थी और मेरी बूढ़ी माँ हमेशा हमें रात घर में ही गुजारने की ताकीद करती। घर में अफराद ही कितने थे, बस हम 2 भाई और एक वालिदा। बहन एक ही थी जो 12-13 साल की उम्र में गर्दन तोड़ बुखार में मुब्तला होकर अल्लाह को प्यारी हो गई थी। भाई मुझसे बड़ा था और उसकी सर्दियों के बाद शादी थी, तो हम दोनों ही कुल कमाई थे, इसलिए वो हमारे लिए बहुत फिक्रमंद रहती थी। मैं जानता था कि जब तक मैं घर ना पहुंचा उस वक्त तक माँ दरवाजे पर ही खड़ी होगी, इसलिए मैं पटवारी को अल्लाह हाफिज कहकर अपने गांव की तरफ जाने वाली बस में सवार हो गया। यह शदीद सर्दियों का मौसम था, हर तरफ धुंध का राज था, इसलिए वो लारी बस भी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। ये लारी अड्डे से निकलने वाली आखिरी बस थी और इसमें मेरे गांव की कोई सवारी नहीं थी सवाए मेरे। मैं अपनी गर्म चादर अच्छी तरह से लपेटकर अपनी सीट पर दुबक गया था। अल्लाह अल्लाह करके सफ़र ख़त्म हुआ और मैं जिस वक्त गांव की पक्की सड़क पर उतरा तो हर तरफ धुंध और खामोशी का राज था। दूर से आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं और ऐसे में तेज़ी से चलते हुए अपने घर की जानिब में बढ़ता जा रहा था कि अचानक एक आवाज़ ने मेरे कदम रोक लिए। आवाज़ खासी वाज़े तौर पर आ रही थी। मैंने गौर किया तो पता चला कि ये कोई ऐसी आवाज़ें थीं जैसे कोई धात की बाल्टी से धात के बर्तन से पानी निकाल कर नहा रहा हो। इस सर्दी के मौसम में ऐसी भीगी और धुंध आलूद रात में भला कौन नहा सकता है? मुझे ये सोच कर ही झुरझुरी सी आ गई। यही वो जगह थी जिसे हमारे गांव वाले किरियां कहते थे और यहाँ चुड़ैल देखे जाने का दावा भी किया गया था। दिल में भी ये ख्याल आते ही तेजी से मैंने अपने कदम घर की तरफ बढ़ाए कि अचानक धड़ाम की आवाज़ आई, साथ ही लोहे की बाल्टी और नहाने के बर्तन की आवाज़ उस रात की ठिठुरती फिजा में गूंजी। हाय मेरे रब्बा! ये तकलीफ भरी आवाज़ मेरे कानों से टकराई तो मैं बेख्तियार चौंक गया। ये आवाज़ तो मेरे लिए बिल्कुल भी अनजान नहीं थी। ये तो हमीदा भरजाई की आवाज़ थी, जो हमारे गांव के कपड़े के दुकान वाले शेर अली की बीवी थी। उनकी शादी को 10 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका था और औलाद नहीं हुई थी। हमीदा भरजाई की आवाज़ सुनकर मैं दरख्तों के झुंड में दाखिल हो गया। वहां जाकर देखा तो हमीदा भरजाई ज़मीन पर अपना पैर पकड़कर बैठी हुई थी और सर से पैर तक पानी में शराबूर थी। जहां वो बैठी हुई थी उससे चंद कदमों की दूरी पर कब्रिस्तान की हदूद शुरू हो रही थी, क्योंकि इस जगह से चंद छोटी छोटी कब्रें नजर आ रही थीं। ये ना जाने किसके जिगर गोशों की आखिरी आरामगाहें थीं। साफ पता चलता था कि हमीदा भरजाई ही सरे रात कपड़ों समेत नहाई है और कच्ची जगह पर पानी के गिरने से जो गारा वगैरह ज़मीन पर बन गया था, उसकी वजह से हमीदा भरजाई का पैर फिसल गया और वो गिर गई। मुझे वहां आता देखकर वो घबरा कर जल्दी से अपनी बाल्टी उठाकर वहां से जाने लगी। मेरी आंखों में बेशुमार सवालात देखकर बोली, वीरे, मैं सवेरे तुझे सारी बात बताऊंगी।
ये कहकर वो लंगड़ाती हुई वहां से चली गई। अगले दिन मैं अपने घर से कुछ दूर एक चरागाह में बैठा था। मेरी गाय भैंसें चरागाह में चर रही थीं, जबकि मैं धूप में बैठा मुसलसल रात के वाक़ये के बारे में सोच रहा था कि अचानक वहां हमीदा भरजाई आ गई। वहां आते ही मेरे आगे हाथ जोड़कर रोने लगी। मैं उसके इस तरह रोने पर घबरा गया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। मेरे भाई, कल रात जो भी कुछ तुमने देखा उसका जिक्र किसी से भी ना करना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मोहम्मद नवाज ने मुझे फौरी तौर पर तलाक दे देनी है, उसने मिन्नत आमेज लहजे में कहा। लेकिन मुझे ये तो बता भरजाई कि तू आधी रात वहां क्या कर रही थी, और वो तेरे गीले कपड़े और वो पानी की बाल्टी। मैं अपनी उलझन भरी सोच को जुबान पर ले आया। जवाबन उसके होंठों पर एक जख्मी मुस्कुराहट वाज़ेह हो गई। और भरजाई, तू जानती नहीं कि जिस जगह पर तू थी वहां तो किसी चुड़ैल का राज है। शुक्र है तुझे रब सोने की जात ने बचा लिया। मेरी बात पर उसके चेहरे का रंग बदल गया। वीरे, मेरी बात गौर से सुन। उसका लहजा हद दर्जे पुरस्कार हो गया। वो चुड़ैल कोई और नहीं, खुद मैं हूं। तू और चुड़ैल, ये क्या कह रही है भरजाई? मैंने उसके खूबसूरत चेहरे पर नजरें जमा कर कहा, जहां पर उम्र गुजरने के बेशक असरात मुरतब जरूर हुए थे, लेकिन खूबसूरती आज भी कायम थी। मैं सच कह रही हूँ। बात ये कि तू तो जानता है ना कि हमारे यहाँ कई सालों से औलाद नहीं हुई, और नवाज 2 बहनों का अकलौता भाई है। जहाँ भर के इलाज दम दरूद सब करा के देख लिए, लेकिन अभी तक इम्तिहान ख़त्म नहीं हो सका। जब तक नवाज की माँ जिंदा थी, उनका उठते बैठते नवाज से दूसरी शादी का मुतालबा रहा। जब उनका बेटा उनकी बातों पर तवज्जो ना देता तो वो अक्सर लड़ भी पड़ती। अब जब से पिछले साल वो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, नवाज बात बात पर उनको याद करने लगा है और अक्सर इस बात का इजहार करने लगा है, मैंने अम्मा की बात ना मानकर बहुत गलती की है, काश मैं उनके कहने पर दूसरी शादी कर लेता। बस वीर, नवाज की ये बात मेरे दिल पर लगी और मैंने अपने गांव की एक औरत के साथ जाकर पास के गांव के एक पीर बाबा से तावीज़ गंडे ले लिए, मगर इसका इस्तेमाल बड़ा मुश्किल था। तावीज़ को पीतल की बाल्टी में पानी में घोलना था और उससे किसी ऐसी जगह पर कपड़ों समेत नहाना था जहां से 7 कदम के फासले पर किसी बच्चे की कब्र हो। ऐसा अमल 7 रातों को करना था। इसीलिए जब भी नवाज माल लेने फैसलाबाद जाता है तो उसको माल लेने पसंद करने और माल दिलवाने में 2-1 दिन लाजमी लग जाते हैं। सो जब वो रात में नहीं होता तो घर को ताला लगाकर मैं अपना काम कर लेती हूँ। कल आखिरी तावीज़ मैंने इस्तेमाल कर लिया है। अब मेरा 7 रातों में 7 तावीज़ों से नहाने का अमल पूरा हो गया है। बस कुछ लोगों ने मुझे आधी रात को वहाँ देखकर चुड़ैल की कहानी बना दी। तुझे डर नहीं लगता था भरजाई वहाँ इतनी रात में जाते वक्त? मैंने हैरत से पूछा। बेऔलादी से बड़ा रोग कोई नहीं और सोतन से बड़ा खौफ कोई नहीं। मैं भी वहाँ सारे डर जहन से हटा कर जाती रही कि मेरा घर बच जाए। बस वीर, तू इस बात का जिक्र किसी से करना नहीं। ये बात करके वो मुझे सोच के कई सिरे थमाकर चली गई और मैं सोचता रह गया कि औरत से बड़ा अगर कोई बुज़दिल नहीं तो औरत से बड़ा कोई बहादुर भी नहीं है। औलाद की खातिर औरत को क्या क्या जतन काटने पड़ जाते हैं, कभी औलाद को पालने और कभी औलाद को पैदा करने के लिए। और ना जाने वो कैसे तावीज़ गंडे थे जो रात में कब्रिस्तान में इस्तेमाल करने थे। ये सादा लोग अपने मकसद को हासिल करने के लिए अपने दीन और ईमान को भी ख़तरे में डाल लेते हैं। मुझे तो पूरा यकीन था कि वो कोई काला इल्म वाले बाबे ने तावीज़ गंडे दिए होंगे। बस अल्लाह ताला हर मुसलमान का दीन ईमान महफूज रखे। अल्लाह की तरफ से हर काम का एक वक्त मुकर्रर किया गया है और वो काम अपने वक्त पर ही होता है। हुआ ये कि उस वाक़ये के 3 साल के बाद हमीदा के खाविंद ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसने हमीदा को भी अपने साथ ही रखा और दूसरी बीवी से एक बेटा भी पैदा हुआ। उधर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी दूसरी बीवी दूसरे बच्चे की पैदाइश के वक्त अल्लाह को प्यारी हो गई, सो उसके दोनों मासूम बेटों की जिम्मेदारी उसकी पहली बीवी हमीदा पर ही आ गई। सो हमीदा ने इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभाया। उसके दिल में ममता की तड़प थी, जिसकी खातिर वो माँ से चुड़ैल का रूप धारने पर भी मजबूर हो गई थी। सो अल्लाह ताला ने उसकी कोख बंजर होने के बावजूद उसको माँ के ओहदे पर फाइज कर दिया। आज इस वाक़ये को कई दहाइयाँ गुजर गई हैं। हमीदा और उसका शौहर भी दुनिया से रुखसत हो गए हैं। मैं भी लबगोर हूँ, लेकिन मैंने हमीदा से किया हुआ वादा पूरा किया।
और जो कुछ उस रात को देखा किसी से भी उसका जिक्र नहीं किया। अब जबकि उम्र की पूंजी तमाम हो गई है तो सोचा क्यों ना अपना ये तजुर्बा दुनिया को बता दूं कि औरत अपनी ममता की खातिर कितनी तकलीफ और आजमाइश से गुजर जाती है कि वो चुड़ैल बनने से भी गुरेज नहीं करती। जैसे हमीदा ने औलाद की खातिर हर आजमाइश सही कि आज भी इलाके में वो जगह चुड़ैल के हवाले से मशहूर है, लेकिन मैंने या हमीदा ने कभी इस राज पर से पर्दा नहीं उठाया था कि ये एक चुड़ैल का राज था।